ختم نبوت کا صرف ٹیگ لگا ہوا ہے، نام لگا ہوا ہے بس سامنے. سب ہم لوگ میرے سمیت بشمول جتنے یہاں پہ بیٹھے ہم سب لوگ ختم نبوت کا نام استعمال کر رہے ہیں، مذہب کارڈ کھیلتے ہیں، اندرون خانہ مذہب کی آڑ میں مذہب کارڈ استعمال کرتے ہوئے سارے لوگ اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، انا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور بالکل چھکی جنگ ہے جس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کے ساتھ کسی کو کوئی نہ یہ مسئلہ ہے، کوئی لین دین نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی لینا نہیں نہ دینا نہیں. فلاں نے اس طرح کر دیا، فلاں پیسے دے دے، فلاں یوں کر دے، فلاں اس طرح کر دے. اتنی زیادہ ایمانیات ہیں تو $10,000 پہ ایمان بیچ کے بیٹھ گئے. وہ $10,000 دے دے تو ہم ویڈیو یہ کر دیتے ہیں، وہ اس طرح کر دے تو ہم فلاں اس طرح ختم کر دیں گے، ہم یہ گالی دینا بند کر دیں گے. اتنی ہی ایمان کے پکے ہیں ہم سارے لوگ، تو $10,000 پہ ہمارا ایمان بکا ہوا ہے. بس اتنے سارے ہم مسلمان ہیں اور اتنی ساری ہماری ایمانیات ہے. اور بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں؟ وہ جو بندہ پچھلے 20-30 سال سے جو ہر محاذ پر نہ صرف ختم نبوت کا کام کر رہا ہے بلکہ ہر وقت قال اللہ اور قال رسول کو بات کر رہا ہے، ہم اس کا کردار ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو روک نہیں رہا، گالی دے رہا. وہ سارا دن قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہے، قال اللہ اور قال رسول کر رہا ہے، اور کیا کرے؟ اسی کو کہتے ہیں نا گالی بازی سے روکنا، اسی کو کہتے ہیں نا برے کاموں سے روکنا. اس کا سارا دن کام کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا ہے. وہ اگر قادیانیوں کو منع کر رہا ہے تو مسلمانوں کو منع کرتے ہوئے اس کی زبان میں کیڑے پڑتے ہیں. وہ کیوں نہیں کہتا ہے؟ صرف بات یہ ہے کہ میرے مطلب کی بات نہیں ہے، میری انا کو تسکین نہیں پہنچتی، لہٰذا میں کہوں گا ظفر اللہ شاہ صاحب بھی اسی کھوڑ کے چور ہے. میری انا کو مسئلہ پہنچا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، میری بات نہیں آئی، لہٰذا سالوی صاحب بھی چور ہیں، سارے چور ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ، آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، میرے سمیت ہم سب، ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی فلاں میرے مطابق ہمیں ڈکٹیٹ کرنا آتا ہے بس. صاحب شاہ صاحب آئے ہیں، شاہ صاحب جی السلام علیکم. شاہ صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے کہ میرے پاس میں ابھی جی السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ میں آپ سے بات کروں. 1 منٹ ٹھہریے گا، 1 منٹ دیجیے گا میں جی 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 اچھا تب تک خالد بھائی آپ کر لیں 1 منٹ بات، تب جب تک شاہ صاحب واپس آتے ہیں. بھیا صاحب بات یہ جو عثمان بھائی نے بھی کی ہے، میں تو ان کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں. اپنی اپنی چوائس ہے. جب ظفر اللہ شاہ صاحب یا سیالوی صاحب کے ساتھ بندے بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں تو وہ جن کو دیتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ جیسے پیر صاحب کے ساتھ ابھی انہوں نے بات کی، شارپ شوٹر گالیاں نکالتا ہے، ان کو بھی گالیاں نکالتا ہے، یہ پھر بھی ان کے دوست ہیں ان کو بٹھاتے ہیں. تو کام تو سیم ہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کا. بالکل صرف الزام بازی ہے، کیونکہ مجھے کوئی ظفر اللہ شاہ پسند نہیں تو میں ان پہ الزام لگا دوں گا، کیونکہ ظفر اللہ شاہ صاحب کو وہ پسند نہیں پیر صاحب تو وہ ان پہ الزام لگا دیں گے. الزام تراشیاں ہیں، حق بات جا کے کوئی کسی پہ نہیں کرتا. ابھی یہ میر کو پتہ ہے، میر گواہ اس بات کا. میں نے خود جا کر وہ حدیث سنا رہے تھے سیالوی صاحب، تو میں نے کہا سیالوی صاحب یہ آپ حدیث سنا رہے ہیں تو یہ تو حدیث یہ شہد پہ اور یہ کاکس پائی پہ فٹ آتی ہے. انہوں نے مجھے بلاک بھی کیا، نیچے بھی اتارا، اور میں نے کہا یہ گالیاں دیتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ وہاں پر جا کے کوئی نہیں بات کرتا. ہم کرتے ہیں کیوں؟ ہم تو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں نا. جتنے یہ بڑے عالم ہوتے ہیں اتنا خدا کے خوف ان کے دل میں کم ہوتا ہے. اصل میں فساد ہی یہ کراتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو بٹھاتے ہیں، گالی بازوں کو بٹھاتے ہیں، گالیاں پڑتی ہیں. خالد جی صاحب السلام علیکم. خالد صاحب خالد صاحب، شاہ صاحب آ گئے ہیں، باقی لوگ ایک ہوتی ہے تنقید، کنسٹرکٹیو تنقید، کوئی نقص کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے بلیٹنٹ ڈس ریگارڈ. تو آپ بالکل ریکلیس ہو گئے ہیں، آپ کی میرٹ کے خلاف بات آپ کر رہے ہیں، اس میں معقولیت نہیں ہے. اصلاح کی خاطر بات کریں، وہ ہمیں سمجھ آئے گی جن کی بات ہم سن رہے ہیں. گو کے بات شروع ہوئی تھی کسی اور پیرائے میں. میں شاہ صاحب آئے ہیں، آپ کو ویلکم ہے، اور برائٹ صاحب ہیں، آپ کو ویلکم. میں صرف تھوڑا سا 30 سیکنڈ میں بیک گراؤنڈ دے دوں. ہماری یہ براڈ لگی ہوئی تھی، اس کا ٹاپک تھا مرزا صاحب کا تعاون کا جو نشان تھا اس کے. جی برائٹ صاحب میں سب دے دے، شاہ صاحب کافی دیر سے سن رہے ہیں، ان کو بتاتے پتہ ہے. نہیں جی کہ میں ادھر ابھی اسکول میں ہوں، میری ایک میٹنگ ہے. جی جی گزاری یہ ہے برائٹ صاحب، میں نے آپ کی موجودگی میں جی جی اپنی براڈ پر جتنے بھی گالی باز ہیں بالکل کتنی مرتبہ بیان دیا. میں نے ان سب کو یہ بات واضح یہ کی ہے کالو کہ صاحب وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ترکیب کر شاہ رہے صاحب ہیں. نے میری بات جی سنیں، جی یہ کالو صاحب نے معذرت چاہتا ہوں غلط بیانی کی. کوئی ایک بتا دے. بڑائی صاحب گواہی دیں گے سیالوی صاحب کی براڈ پر، متعدد براڈز پر ان حضرات کی موجودگی میں ہم نے ان کو براہ راست منع کیا. اچھا بقیہ سیالوی صاحب سوائے اپنی براڈ کے سن لیں، نوٹ کر لیں. میں بعض اوقات دوسری براڈ پر جاتا ہوں،
सियालवी साहब अपनी 2 घंटे की ब्रॉड लगाते, उन्हें नहीं खबर होती दूसरी ब्रॉड्स पर क्या हो रहा है। समझ आई बात की। और जहाँ आपके ये भी इल्म में हो, मुसलमानों की ब्रॉड पर जब पहली गाली दी जाती है मैं उतर जाता हूँ, मुझे फिर नहीं पता होता वहाँ क्या है। आज तक कहीं गालियाँ हो रही हों और मैं उस ब्रॉड पर मौजूद हुआ हूँ तो मुझे दिखाइए, सुनाइए। जहाँ गालियाँ शुरू होती हम उतर जाते हैं। और हम अपनी ब्रॉड, खालू साहब आपको गलत फहमी है, किसी ने गलत बताया आपको। हमने अपनी ब्रॉड्स पर मुतअद्दिद मरतबा गालियों की नफ़ी की और कहा गालियाँ देना दुरुस्त नहीं है। हम वाकई तरबियत करते हैं, उनके सामने बताते हैं जो हजरात भी होते हैं कि गालियाँ मत दे, बल्कि ये वड़ाई साहब गवाह हैं, मैंने 5 मिनट लगाए थे। सही। गालियाँ देना दरअसल जो हमारी मूवमेंट ख़त्म नबूवत है उसको वो आप दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी से लिंक करना चाहते हैं, ये बड़ा सब गवाह है। 100% एग्जैक्ट अल्फाज। इसलिए आप प्लीज, आप जब तक आपको इल्म ना हो, मैं चूंकि यह स्कूल में था, मैंने अभी आपकी गुफ्तगू सुनी है, तो मेरा ये, हम गालियों के सख्त खिलाफ हैं, हमें खुद गालियाँ नहीं दी गई। बिल्कुल गुजारी ये है, हमारी तस्वीरें नहीं लटकाई गई। अभी आप लोग जो हैं, लेकिन हमने उनको इग्नोर किया, जवाब ही नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं ये शाह साहब और सियालवी साहब क्या हमारे खिलाफ जो है, हमने कोई अपनी ब्रॉड चलाई है बड़ाई साहब? जी नहीं। इसलिए मेरिट पर गुफ्तगू करें। और बकिया हजरात जो हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ये प्याली में तूफान खड़ा किया, कुछ नहीं, नथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह सियालवी साहब जैसे काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे हम। और हमें जिन्होंने हमें धमकियां दी मरने मारने की, हमने उनको इग्नोर किया हुआ है। इसलिए हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। और जो हजरात भी माजी में, मैंने खुद जितना कुरान पाक पढ़ा सकता था, आज जो मुबल्लिग बने हुए हैं, पूछिए शाह साहब ने कितना वक्त दिया है आपकी नोक पलक दुरुस्त करवाने में। आप तर्जमा गलत करते थे दुरुस्त करवाने में, कादियानियों के सामने मौक़िफ़ अपना कमज़ोर रखते थे। मुझे कोई गरज थी आप लोगों से? हमारा जो मजमून है कुरान पाक है, हमारी ब्रॉड पर बिल्कुल गाली की ममानियत है, माँ बहन की कादियानियों को भी गालियों की ममानत है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके ज़ाती मामलात में हम उलझे। सियालवी साहब का भी यही मौक़िफ़ है और वड़ाई सब गवाह हैं। ये कहना कि उन्होंने एक मरतबा मना नहीं किया, यार इतना क्या मसला क्या है आपका? हमने रोज़ाना, बल्कि रोज़ाना 1-2 मिनट लगाते हैं हम कि प्लीज़ गालियाँ ना दो, अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर कर रहे हो। ये मेरी गुजारिश थी, मैं मज़ीद भी बैठता, लेकिन आपने सुन रहे थे वहाँ, मैं स्कूल में था, मैं बाहर निकला हूँ। अब ये गुफ्तगू करके हम कैटेगोरिकली गालियों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन पूरे जो सोशल मीडिया पर है, हमें नहीं खबर होती कि कौन किस वक्त क्या कर रहा है। हाँ, अपनी ब्रॉड पर हम अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हैं, उनको भी समझाते हैं कि गालियाँ देकर आप खिदमत नहीं कर रहे, नुकसान कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह वड़ाई साहब। जी शाह साहब ने जो बातें की हैं, मैं खुद उन ब्राड्स के ऊपर बैठा था और 100% एक्यूरेट बात है, मैं खुद गवाही देता हूँ। इसीलिए मैंने आप सबसे अर्ज किया है कि अगर शाह साहब या सियालवी साहब, उनकी ब्राड ओपन ब्राड है, उसके ऊपर अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, जो इतने अच्छे नहीं हैं उनको वो तलकीन करें। इनका काम तलकीन करना है, तलकीन करेंगे तो कोई नेकी की तरफ आएगा। तो आप प्लीज इतना तो गुमान रखें। एक मिनट मौका दूंगा आप मुझे, मौका दे मुझे। देखें, हल्की सी बात की मैंने, क्या की कि अगर रोका है, मना है, तो कुछ सबूत पेश कर दें। ठीक है, आपने शाह साहब, आप काबिल एहतराम है, आपने आके बात कर दी कि हमने रोका है। इतनी बात पे आपको लगा कि शायद कोई मुझसे कोई मसला है, यानी मुझे शाह साहब से कोई जाती मसला है। क्या हो सकता है भाई मसला? मुझे शाह साहब आप तो मेरे ये पर्सनल मसला नहीं है, ये मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों को फतवे लगाते हैं। शाह साहब ये पर्सनल मसला नहीं है। प्यारे मीर साहब, साहिब साहब को बात कंक्लूड करने में एक दफा। जी, आप सादे मोहतरम हैं, मुझे आपसे कोई जाती मसला नहीं है। आपने जो बात की, मैंने यहाँ पे सामने कहा कि अगर सबूत है, शाह साहब नहीं है, सियालवी साहब ने मना किया, मुझे दिखाएं। आपने आके बता दिया, मैं मान गया। लेकिन शाह साहब, जब आपने उनको मना कर दिया कि भाईजान गालियां ना निकालो, फिर आपको लोगों ने बता दिया कि भाईजान ये लोग बाज नहीं आते, ये कितनी कितनी गलीज किस्म की गालियां, ना ये बहन देखते हैं, ये ना माँ देखते हैं, ना भाई देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ एक गलीज तरीन गालियां शाह साहब ये निकालते हैं। शाह साहब, क्या आपने इनके मौकफ के ऊपर जाके इनको कहा कि भाईजान अगर तुमने ये काम करना है तो फिर हमारे पास ना हो, हमारा नाम बदनाम होता है, उलमा किराम का नाम बदनाम होता है कि तुम एक साइड पे जाके बैठ के गालियां निकालते हो और यहाँ पे हमारे साथ बैठ जाते हो?
शाह साहब इतना सा मुतालबा है आपसे कि शाह साहब अगर ये लोग गालम गलोच करते हैं, आपके समझाने से, आपके कहने के बावजूद नहीं बाज आते, तो कम से कम अपने साथ ना बैठाएं इनको अपना लेबल ना दें कि हम शाह भाई, साहब की आपकी लाइन पे बात बैठे आ हैं, हम गई बड़े है, वजह बस से जुड़े हुए हैं। आप दूसरे किसी को मौका दें प्लीज। जी अस्कानी साहब आप बोले। जी मेहमान खुसूसी, देखिए बात यह है साहिल साहब, हाँ मेरा एक फ़ोन आ गया कुदरती तौर पर, मैं अपना टाइम जो है किसको दे दूँ, किसको दे दूँ? नहीं, मेरा जानशीन मीर साहब है, मेरे सितारे इनके साथ मिल रहे हैं, उनको दे दे जाए प्लीज। अकेला पीर साहब, लेकिन मैं ब्राइट स्टार भाई काबिल एहतराम है, पहले के आए हुए हैं और वो इल्म भी रखते हैं, वो कुछ बात करना चाहें तो उनको मौका दे। जी ब्राइट स्टार भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे अच्छा वो मैं रिजवान भाई का टाइम लगा दिया था वो। जी राइट भाई, वालेकुम सलाम। जी मैं काफी देर से मैं सुन रहा था, दो बातें यहाँ हो रही हैं। एक तो ये है कि गालीबाजी, तो गालीबाज तो किसी का सगा नहीं होता और ना ही गालीबाजी अच्छी चीज है। गालियां जो भी देता है वो फिस्क और फजूल का काम करता है, कोई भी मुसलमान करे या काफिर करे, कोई भी करे। तो इसलिए इससे तो एतराज करनी चाहिए और हर एक को इससे कंडेम करना चाहिए। कोई भी कहो कोई गाली से किसी की इस्लाह नहीं होती, मजीद फसाद फैलता है और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। यही वजह है कि किसी ब्रॉड अभी ये ब्रॉड भी जो लगी हुई है, यहाँ भी आप देख लें कि कितनी देर से यही बात डिस्कस हो रही है। वो हमारे भाई जो खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, वो अपनी तवानाइयाँ दूसरी तरफ सर्व कर रहे हैं। तो ये इससे अंदाजा होता है कि शैतान किस तरह बहकाता है इंसान को और वो उसको किस तरह डिट्रैक्ट करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिलिसानी ही हो जाती है। तो मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो इसलिए हम सबको इस बात का एहसास करना चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये ना तो इससे अल्लाह खुश होगा, हाँ अलबत्ता शैतान जरूर खुश होगा। और मेरा यकीन है कि हम सब में से कोई भी नहीं चाहता कि शैतान खुश हो। अब इस मसले का हल क्या है? बाज़ भाइयों ने तजवीज़ किया कि उलमा के पास जो लोग बैठते हैं, अगर उनमें गालीबाज हैं तो उलमा को चाहिए कि उनको समझाएं, और अगर वो नहीं समझते तो उन्हें कहें भी आज के बाद हमारी ब्रॉड पर नहीं आना। मैं इससे एहतराम से, मैं बसद एहतराम इससे मैं इख्तलाफ करूँगा। उलमा की ये तरीका होता नहीं है। जितनी ज़्यादा आप उलमा की महफिल में बैठेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके इल्म में इजाफा होगा और आपके तकवा में इजाफा होगा, क्योंकि उलमा ही होते हैं जो इस्लाह का बेहतरीन जरिया होते हैं, क्योंकि अल-उलमा वरसतुल अंबिया। तो अगर आप ये तजवीज़ करेंगे कि आप उनको अपनी महफिल से निकाल दें, तो मेरा ख्याल है ये किसी मसले का हल नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है, मुसलसल तलकीन करते रहना चाहिए, तबलीग करते रहना चाहिए। और शाह साहब सियालवी साहब मोहतरम ये कब काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सियालवी साहब ने खुद भी इसकी वजाहत की कि उनकी ब्रॉड पर अगर कोई शख्स आया है, उसने किसी को गाली दी है, किसी मुसलमान भाई को, किसी मुसलमान बहन को, और उन्हें उसकी इजाज़त दी हो, तो फिर बात करें ना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उलमा को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि वही ऐसी हस्तियाँ होती हैं जिनके तरफ हम अपनी इस्लाह के लिए और हदायत के लिए देख सकते हैं, उनकी रहनुमाई ले सकते हैं। दूसरी बात ये है जी, मुझे जरा एक मिनट दीजिएगा मौका दें जी। उम्मे सिस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं बात तवील नहीं करूँगा। मैं बस ये करूँगा कि अल मजालिसु बिल अमाना, जो मजलसे होती हैं अमानत के साथ होती हैं, वो खा 2 अफराद की गुफ्तगू हो या 4 अफराद की गुफ्तगू हो, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया कि मन सतर मुसलमान, ऐसी हदीस है कि सतरल्लाहु फिद दुनिया वल फिल आखिरा, कि जो किसी मुसलमान की सतर पोशी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में और आखिरत में भी सतर पोशी करेगा। आखिरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि देखिए, जो टीम वर्क होता है उसकी बड़ी बरकत होती है। जब मुसलमान अपन दिल के अंदर से कुदूरतें, बुग़्ज़, नफरतें निकाल के सिर्फ खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए काम करते हैं, अपनी तवानाइयाँ, अपनी सलाहियतें इसी एक मकसद के लिए लगाते हैं, उसमें बड़ी बरकत पड़ती है। 7-8 माह पहले
ایک ہمارے بھائی ہیں सिद्धू जट साहब, उन्होंने एक कादियानी को रेफर किया था नाइट राइडर भाई की तरफ. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उस कादियानी ने साहिल भाई की ब्रॉड पर नाइट राइडर भाई की ब्रॉड पर आकर उसने इस्लाम कबूल किया है. इस पर तमाम भाइयों को मुबारकबाद हो. मेरी सिर्फ तमाम भाइयों से गुजारिश ये है कि खुदारा अपनी सलाहियतों को ज़ाया मत करें. अगर उनका अना नाम की अनाउंस जंग से करते निकलें. हैं ब्राइट स्टार साहब, अगर प्लीज नाम उनका. जी जिस भाई ने इस्लाम कबूल किया है उसने अभी इसकी इजाजत नहीं दी, ओके। इंशाल्लाह 2-3 दिन में खुद आ जाएंगे. ओके 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 ओके. जी हाँ, तो वो खुद 2-3 दिन में खुद वो आएंगे तो इंशाल्लाह. बहुत मुबारक हो. एक सवाल है ब्राइट स्टार भाई. अच्छा डॉक्टर होली स्पिरिट साहब का मेरा 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 टाइम. पीर साहब जी जी, आप एक सवाल फिर से एक सवाल प्लीज पूछ लेंगे. जी इसी नोट पर मैं अपनी बात मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि यही मैं इसी नोट पर कि देखिए बात सुनिए, आप सारे भाई हैं, मुसलमान हैं, खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ गुजारिश है कि अपनी अनाओं की जंग छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल का आलम थामे और खत्म नबूवत का और दीन दावत दीन का काम करें. आप मुझसे ज़्यादा मोहतरम है, मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है और मैं आपका दिल से एहतराम करता हूँ. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. ब्राइट स्टार भाई अगर आप जाने लगे हैं, मेरा एक सवाल था आपसे. जी सवाल करें आप. मुझे सिर्फ 3 मिनट का मौका दे दें, उसके बाद आप बात करना. एक मिनट अब्दुल्ला मेरी यार. जान सवाल पूछ लेने दे मीर साहब को, प्लीज सवाल पूछ लें प्लीज. डॉक्टर होली स्पिरिट नाम का एक बंदा है, उसने गालम गलोच की और गलत जुबान इस्तेमाल की, उसका बाइकआउट कर दिया गया. वही जुबान, उसी तरह की जुबान उसके साथ भी बैठते रहे हैं यही लोग. इनको साथ बिठाना है, लेकिन उसका फिर बाइकआउट क्यों किया गया? उसको क्यों नहीं साथ बिठा के उसकी इस्लाह की गई? मीर साहब ब्राइट स्टार साहब ने पहले जवाब दिया है, आपने सुना नहीं. मैंने भी बात उसी पे की है, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब भी बात उसी पे. खुदा के बंदो, मेरे प्यारेओ, गल सुन लो. उसी पे की जो लोग जो देखें, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, बटन ऑन ऑफ बिजली के स्विच नहीं ये होते. अगर कोई उलमा की महफिल में आ रहा है, ये बटन और हॉली उसकी बात सुन हॉली रहा है, स्पिरिट के लिए भी बटन करें ना, ना ये बटन उनके लिए भी ऑन करें, ऑफ नहीं करना. ब्राइट साहब आप समझे नहीं है सवाल. हमें इतराज नहीं है उनको साथ ब्राइट बिठा के स्टार साहब उनकी इस्लाह करने पे. आप अफजल बड़ाई साहब, क्या सियालवी साहब और ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने कहा है कि होली स्पिरिट के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं? बंद है. नहीं, उन्होंने नहीं कहा ऐसी बात. बाइकआउट करवाया. चले ब्राइट स्टार से आपने सवाल पूछा. बाइकआउट तो होता है, उन्होंने कभी कहा है कि हमारे दरवाजे बंद हैं? नहीं, बाइकआउट का है, दरवाजे बंद. बाइकआउट. अच्छा, बाइकआउट का मतलब बाइकआउट. ब्राइट स्टार अच्छा, साहब अभी सिर्फ पीर साहब के बाद आप बात करें. अब्दुल्ला होल्ड ऑन. ब्राइट स्टार भाई, मैं मेहमान खुसूसी था. प्लीज लेट ब्राइट स्टार. अच्छा 1 मिनट मौका दें पीर काली साहब. ब्राइट स्टार भाई, आप इसको एड्रेस करना चाहते हैं? ब्राइट स्टार साहब, आप प्लीज 1 मिनट मुझे ऊपर ले जाए, मैं मेहमान खुसूसी था भाई. मैं लेता हूं, मेहमान खुशी को लेता हूं. कानी साहब आपकी कुर्सी हमने जी दे दी है. मैं अर्ज करता हूँ, देखिए अगर मेरी बात से जान आप किसी को अर्ज ना इख्तिलाफ करें, है, आपने बात की, पीर हमें साहब बात होल्ड करने कर दीजिए, लें प्लीज. पीर साहब ना करें प्लीज. जी जी, आप हम- अब हमने पीर साहब एक मिनट, आप भाई का जवाब देने थे, मैं उसके बाद खामोश हो जाऊंगा. देखिए आप भाई ने जो सवाल किया है, मैंने पहले अर्ज किया था कि जो आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको मुकम्मल हक हासिल है और मेरी राय के आप पाबंद नहीं है. तो अगर आप समझते हैं कि मेरी राय गलत है तो आप इसको जुटला सकते हैं, कोई बात नहीं. बाकी आपने कहा कि डॉक्टर होली स्पिरिट साहब के बारे में, डॉक्टर होली स्पिरिट साहब अपनी ज़ात में खुद एक अंजुमन है, खुद लाइब्रेरी है, तो वो तो आप उनके बारे में क्या कहा जाए. वैसे वो कुछ अर्सा पहले वो शाह साहब के खिलाफ उन्होंने बातें की थी और फिर वो शाह साहब की ब्रॉड पर भी आए और बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू आगे बढ़ती रही थी उनके साथ. तो उसके बाद फिर अभी फिर एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए. तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसी हस्ती नहीं है कि आप उनको कहें कि आप हमारे पास बैठे आके हम आपको हिदायत दें, आपको कुछ सिखा सके. ब्राइट भाई, अपने तौर पर खुद एक अंजुमन है. जी जज़ाकल्लाह. ब्राइट भाई, जज़ाकल्लाह. मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूंगा. अगर डॉक्टर होली स्पिरिट वो डंगर स्पिरिट जो है, बाकी हस्ती नहीं है. 1 मिनट पीर साहब, मुझे तो बात करने देना, मुझे तो ना कमाल है भाई, बात करने का तरीका भी नहीं. और ब्राइट साहब भी, अगर डॉक्टर डंगर जो होली स्पिरिट है, अगर वो खुद एक लाइब्रेरी है, तो शायद जो है वो भी एक लाइब्रेरी है, बाऊ जी भी है, वो भी एक लाइब्रेरी है, वो भी बहुत हवाले अपने पास रखते हैं, तो फिर उनको भी साथ बैठाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक जगह पे अपने आप मुकाम रखते हैं. तो इतनी सी बात है. लेकिन एक और बात ब्राइट सर, भी कल आप लोगों की लाइव लगेगी तो ब्लैक फ्लैग आकाश लोगों को आपके पास भेज दिया जाए ताकि आप उनकी सलाह करें. आप लोग इजाजत देंगे वो बैठ के आपके पास बात करें? बिल्कुल भेज दें, हम करेंगे.
हम सब करेंगे, भेज दें। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है किसी के साथ ना की जंग नहीं है, तो हर एक के लिए दावत का मैदान ओपन है, सबको एक दूसरे की सलाह करनी चाहिए। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, मोमिन आपस में भाई भाई हैं आप लोगों को। और उनकी आपस में सलाह करनी चाहिए। पीर साहब एक मिनट, पीर साहब मैं आपका टाइम आ गया। पीर साहब आपसे पहले ना दो भाई बैठे हुए हैं। पीर साहब ठीक है, आपका टाइम मैं दे रहा हूँ, अब मैं तो मेरी बात अगर मुझसे पहले तो उनको बात कराने हाँ मैं करवाता हूँ, आपकी बात करवाता हूँ। 2 मिनट मैं आपको दूंगा, उसके बाद मैंने दूसरे भाइयों को लेना है। अब्दुल्ला भाई कल आपने एक लाइव लगानी है जिसके ऊपर आपने स्पेशल ऊपर लिख के लगाना है कि आकाश मलक लोगों को इजाजत है यहाँ पे अपने आगे तबलीग करने की। अब्दुल्ला भाई खास तौर पर आपने लाइव लगानी है। बिल्कुल मुझे किसी किस्म का मसला नहीं बात है। मैं तो उन लोगों की भी इस्लाह करना चाहता हूँ जो लोग ये कहते थे कि मरज़इयों को इजाजत है हमारी ब्राड पर आके सलाम सलात कहें, खुली इजाजत है, तो कोई मुसलमान हमें रोक के दिखाए। मैं तो उन्होंने इस्लाह कर लिया ना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इस्लाह कर लिया ना इस्लाह उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इसीलिए हम उनसे भी हमें नहीं अभी आप बर्दाश्त हाँ ये तो अब अल्लाह जानता है किसी के कहने पर किया है या खुद किया है। चलें किसी के कहने पे की है यार, ठीक है सही है। अच्छा वैसे पीर साहब मुझे सिर्फ 3 मिनट दे दें, मैं अपनी बात करके फिर मीर साहब देखा ये किस तरह से क्या निकला है, देखा। छोड़ दें। देखिए जैसे आप निकालेंगे साहिल साहब हम भी वैसे निकालेंगे। मैंने सबको बताया कि हम किसी की तरफ नहीं, पीर साहब हम सब की तरफ है। मुझे टाइम दे दीजिए। अच्छा जी जब आप तजावुज करेंगे तो हम आपको भी वहाँ ही वाड़ेंगे जहाँ उनको वाड़ा हुआ है। नहीं, आप तनकीद बर्दाश्त करें ना। आपके वाड़ने का हमें बड़े अच्छी तरह से पता है, दूसरे की भी बर्दाश्त करें। आपके वाड़ने का हमें बड़े अच्छी तरह से मैं कह रहा हूँ हम हमारे लिए सब बराबर हैं। आप तजावुज करेंगे आपको भी अपनी जगह दिखाई जाएगी, वो तजावुज करते हैं उनको भी उनकी जगह दिखाई जाती है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जगह दिखानी आती है ना अब्दुल्ला, मेरी बात नहीं किसी ने नहीं किया बाइकआउट, वो इस तरह की बातें होती रहती है, टूटती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अफजल बड़ैल साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ। अफजल बड़ैल साहब मुझे सिर्फ 3 मिनट यार एक मिनट बात तो सुनो ना साहब। आपसे कोई बंदा आके आप मेरा टाइम कहाँ चला आप अपने वालिद का नाम किसी को बताएं। पीर साहब 3 मिनट दे दें, मेरी बात सुनो। अब्दुल्ला रुक मैं जाओ करवा यार, रहा हूँ, सबकी बात मैं करवा रहा हूँ। अफजल बड़ैल साहब आप किसी को अपने वालिद का नाम बताते हैं, अगर ये कहने मुझे डीएनए रिपोर्ट ला कर दिखाओ। इधर शाह साहब ने आके कहा कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, ये उनको कह रहे हैं सबूत दो। मुझसे भी सबूत मांगा गया जब इन्होंने इस हरकत पर माफी मांगी। अब्दुल्ला मरज़इयों को इजाजत है कि वो सलाम सलात आकर पढ़े और कोई मुसलमान हमें रोक कर दिखाए। मैंने उन लोगों को समझाया कि इन लोगों ने माफी मांग ली है, वो लोग कहते थे कि हमें सबूत दिखाओ, लेकिन मैंने भाई आपने एहसान किया है, मांगो क्योंकि मेरा तुम्हारा कोई तलब नहीं। अब्दुल्ला एक मिनट मेरे भाई एहसान नहीं किया, जो हक बात है वो हक बात तुम लोग अल्लाह के है। ये बात वो ग्रुप उलमा के पास भी लेके गया। उलमा ने क्या कहा था कि ये बात ठीक नहीं है, उस ग्रोह को इधर लेके आओ, उसकी बात सुनेंगे, फिर उस पर कोई फतवा लगेगा। आज ये उन्हीं उलमा के खिलाफ हरजत सराई कर रहे हैं, उन्हीं उलमा को किनारे में खड़ा करके कह रहे हैं कि तुम कि तुमने गालीबाजों को मना किया। इनकी शर्म हया उतर चुकी है। म्यूट लगा लो मेरे भाई। इन लोगों की शर्म हया उतर चुकी है, अब ये कुछ भी करेंगे, हमें बात करने नहीं देंगे साहिल भाई। आज इन सबको अपने अपने मसाइल हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ जाती मसला यही है कि इनको कटहरे में खड़ा करके उस ग्रोह ने जो इनसे माफी मंगवाई है ना उस काम पर उसका ये निकालने के लिए, रंजिश निकालने के लिए ये उलमा पर भौंकने लग पड़े हैं। यानी कि वो जो हमें आके सबूत दें। ये गालियों से बड़ा लांती काम है जो तुम लोगों ने किया था कि मरज़ई हमारी बरात पर आकर सलाम और सलात पढ़े, कोई मुसलमान हमें रोक के दिखाए, ये कहीं बड़ा लांती काम है। वो सियालवी साहब ने भी कहा था, मैं प्ले करूं रिकॉर्डिंग, उनके ऊपर भी ये बात जाएगी। फिर जाहिल इंसान, सोच समझ के बात किया करो। इसीलिए तुम्हें समझाया था ना, जब उलमा आपके हक के लिए खड़े हैं, उलमा तमाम लोगों के लिए जो हक की बात है उसके लिए खड़े हैं, तो फिर आप ये उलमा के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? उसको किसी चीज ने तंग कर दिया है, तुम्हारी औकात क्या है? तुम लोगों की औकात क्या है?
जबरदस्त दो बैठे हुए वो सियालवी साहब और से जफरुल्लाह शाह साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, एक बैठा हुआ है वो आमिर नजीर जिया रसूल मुफ्ती मुबशर के खिलाफ बोल रहा है, एक और आ जाएगी वो बोलेगी तमाम खत्म नबूवत के मुजाहिद कुत्ते हैं। ये उसका बयान रिकॉर्ड है उमर बाप का। जबरदस्त अब्दुल्ला भाई। इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ, लड़ाइयां इन लोगों की अपनी है, जाती लड़ाइयां इन लोगों की, किसी को कोई मसला है किसी को कोई मसला है, खड़े ही उलमा को कटहरे में कर लेते हैं। जी मैंने पहले भी साहिल साहब आपको पहले भी बताया था, हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम हक के साथ खड़े हैं। लगाएंगे कुफर का। आप कह रहे हैं कि ये मेरे बात देखो सामने कैसे आप निकला उसको बीच में बोलने से, दो, हम ये पीर बात साहब, निकालेंगे, उसको बोलने दो, हम उसको बार बार बोलने दो, निकालेंगे जब आप तजावज करेंगे। बोलो बोलो, इसको बोलने दो। सबसे गुजारिश की थी कि कोई भी अपनी हदूद को कायम रखो और तजावज ना करो, जहां जहां हो वहां वहां रहो, अपने गुनाह अभी धुले नहीं, अपने ऊपर से इल्जामात अभी हटे नहीं, और उलमा पे इल्जाम लगाने के लिए उठे हो कि फलाना पुष्प नहीं कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा टाइम है। लगा हुआ है। जिन लोगों ने तुम्हें कटहरे में खड़ा करके तुमसे माफी मंगवाई है उनसे डायरेक्ट जाके लड़ो। जी मैंने भी अपना टाइम दिया है इनको। कोई आता है जी, मैं गया सियालवी साहब की बराड़ पर तो उनको जाकर कहा कि ये गालीबाज है, इसको पास क्यों बैठाया हुआ है, तो उसने मुझे उतार दिया। वही शख्स हुसैनी साहब की बराड़ पर घंटों घंटों बैठता रहा है, और उधर अंबिया को गालियां, उसने आज तक नहीं कहा हुसैनी साहब ये आप क्या करते हो। ये नीचे बैठा हुआ है खालिद नाम का, वो कहता है जी वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, असूल तो सबके लिए बराबर होता है, पेट का जो असूल बना। अब्दुल्ला आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब्दुल्ला साहब आवाज नहीं आ रही। मुझे नहीं आवाज आ रही है, अब्दुल्ला वो खामोश हो गया। ये रिजवान टाइम दे दीजिए। नेटवर्क का मसला बन गया। ओ थक गया, अब्दुल्ला थक गया। एक मिनट देखो, मैंने अब्दुल्ला को इंसाफ दिया है, उसको 5 मिनट मैंने दिए हैं, बाकियों को दूंगा। मुझ पे भरोसा रखो यार, ऐसा ना करो। मेहमान खुसूसी देखो अब्दुल्ला भाई, अगर अब्दुल्ला भाई आप हो यहाँ पे तो मुझे बता दो, अगर आपको और टाइम चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं आपको और टाइम तो दूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात आपके लिए अर्ज करूंगा कि जिन लोगों की बात आप कर रहे हो ना, जिन्होंने हमें कटहरे पे खड़ा किया, हमने उनको पहले भी कहा था तुम लोगों की धमकियां, तुम लोगों की बातें जूते की नोक पर। और अब्दुल्ला भाई आप हमें हदूद के नवाओ, आप कौन हो, आपकी भी बातें जूते की नोक पे। शुक्रिया जी। पीर साहब आपका टाइम है। मुझे बड़ा बस ही हो कीजिए, गया। बड़ा पता पड़े कि मेहमान खुसूसी बात कर रहे हैं, बड़ा कीजिए प्लीज। जी टाइम लगा इनकी कुर्सी खींच लो नीचे से। टाइम लगा लीजिए प्लीज, ताकि पता पड़े। अच्छा चले, आप टाइम नहीं लगा रहे। देखिए पहली बात यह है कि यहाँ पर हमारे बराइश साहब ने जो हदीस पढ़ी, हदीस तो बिल्कुल मौजूद है, मन सतरा मोमिनन सतरल्लाहु यौमल किसने क़ियामा। उतारा? लेकिन ये क्या तरीका है उतारा? भाईजान, ये क्या तरीका है? ये भाईजान, ये क्या कादियानियों तरीका के है? सूलतकार जो है सब ना, करें। इन्होंने उतारा है। करें उसके बाद मैं अब्दुल्ला भाई ये कादियानी के सूलतकार है, इन्होंने ओ उतारा है। भाई आप तो शाहिद के राइट हैंड हो जो गालम गलोच करता है। रिजवान साहब शर्म नहीं आती? इतनी एज हो गई है लेकिन वो औरतों को गंदी गालियां देता है। पीर साहब शाहिद बात को करें, डिफेंड करने आए पीर साहब हुए बात करें, भाईजान मेरा टाइम तो खराब पीर हो साहब गया बात ना। करें। मेरा करें, टाइम मैं आपको कैसे उतना लगा? टाइम ज्यादा दे दूंगा। बात करें, मैं अपना टाइम से उतना ज्यादा दे दूंगा, बात करें आप। चलिए ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि बराइश साहब हमारे मुहतरम हैं, इनसे कभी कोई तल्ख बात नहीं हुई है। हदीस जो उन्होंने पेश की है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन गलत मौके पे पेश की है, इससे गलत इस्तदलाल ले रहे हैं। देखें, पर्दा पोशी तो आप करेंगे, लेकिन हर चीज में पर्दा पोशी करेंगे जहां नुकसान हो रहा हो, ये तो बात गलत है। इनकी पर्दापोशी आप करेंगे जो तस्वीरें टांग कर बहन की, बेटे की, माँ की जो मरा हुआ है उसके कब्र की तस्वीर वहां से निकाल कर इज्तिमाई तौर पर बदकारी करने का, उसकी पर्दापोशी करेंगे आप? ये तो नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वरना सबकी पर्दापोशी करो, किसी को कुछ ही नहीं कहो। ये हुदूद क्यों है फिर? सरेआम लाकर सजाएं क्यों हैं? तो हर जगह जो है पर्दापोशी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये उलमाए दीन जो अपने आप को उलमाए दीन कहते हैं,
सैयद साहब और सियालवी साहब, इनका किरदार उलमाए दीन का नहीं है। आपको बुरा लगे या आपको सही लगे, मैं आपको कह रहा हूं, मैं, ये मेरा अकीदा है कि इन्होंने उलमाए दीन का किरदार अदा नहीं किया, बल्कि इन्होंने गाली बाजों के हिमायत की। यहां तक कह दिया, यहां तक अपने बोर्ड पे कह दिया कि ये जो लोग हैं असल काम तो ये कर रहे हैं, ये असल काम कर रहे हैं, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं। हम तो सफेद पोश हैं, आलम दीन आप हमें मानते हैं ना, मुझे बड़ा कीजिए। अच्छा, हम तो आलम दीन है, जाहिर बात है। हमने गुंडे पाल रखे हैं, वो गालियां देते हैं, हम तो वो कर नहीं सकते। आलम दीन कैसा कर सकता है? अगर एक आलम दीन के एक आधा दर्जन गालीबाज बदमाश हों तो उसको क्या जरूरत है करने की? वो करेगा ही नहीं। इन्होंने कभी भी, ये देखे यहां पर नीचे जो लिख रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, इनको फोन करके मैंने कहा है, इन्हीं को जो अपने आप को सैयद कहते हैं, ये भी झूठ है, सैयद नहीं है ये। इनको मैंने फोन करके कहा है। ऑब्जेक्शन, कि देखो ऑब्जेक्शन, पीर साहब इनको रोके हैं अफजल भाई। डेफेमेशन और बिलो द बेल्ट आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक मिनट जी, अफजल वलायत भाई, अफजल वलायत भाई, वो हमारे उनका कदम के पर आके बिल्कुल हम नहीं इसको टॉलरेट करेंगे। आपको कोई हक नहीं है। एक मिनट, वो जो मैं नीचे लिख उनको रहे हैं कि झूठ रोक रहा बोल रहा हूं, है, मैं उसको आप नहीं लिखे उनका टाइम खत्म हो गया। पीर साहब आपका टाइम खत्म हो गया, फिर दोबारा बारी आती है आपके। एक मिनट दें मुझे। नहीं नहीं, मुझे एक टाइम मिनट खत्म और हो दे गया। देना। टाइम लेकिन खराब साहिल हो साहब, नहीं, नहीं, किसी को भी आप बाकी दूसरे लोग लोगों को बैठे जिन्होंने पर्सनल मैं बताने लगा हूं, उनको भी रोका। मुझे एक मिनट और अफजल वलायत भाई, मौका दे। नीचे नीचे जो लिख रहे हैं पीर साहब मेरी बात सुनिए। पीर साहब आपका टाइम खत्म हो गया है। पीर साहब, पीर साहब आपका टाइम खत्म हो गया, म्यूट करें जरा एक मिनट। अब्दुल्ला भाई, एक मिनट तो दे दें। एक मिनट। अफजल वलायत भाई, अफजल वलायत भाई, बस चुप खामोश करवा रहा हूँ ना सबको, मेरी बात सुनो। मेरे टाइम पे बोला गया, मुझे एक मिनट तो दे दें वापस। मैं आपको ज्यादा टाइम दिया है, मैंने आपको ज्यादा टाइम दिया उससे, आप प्लीज खामोश हो कहाँ जाइए। ज्यादा टाइम? अब्दुल्ला भाई आप, मैंने दिया, मुझे पता, मैं टाइम गिन रहा था। अब्दुल्ला भाई, जो मैंने आपको आपकी बात का रिस्पॉन्स किया था, आपने सुन लिया था? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। अच्छा, आवाज नहीं, आपको शायद नेटवर्क खराब हो गया था और आप बात नहीं कर रहे थे और खुद ब खुद नीचे चले गए थे। मैंने आपको ये कहा था कि आपकी सारी बातें जो है ना, वो एक जगह पे, जो बात आपने कही थी ना, हमने किसी के कटहरे में खड़े होकर किसी की वजह से माफी मांगी, तो इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि अब्दुल्ला भाई, हमने पहले भी कहा था, अब भी कहते हैं कि ऐसी माफिया और धमकियां देने वालों की बातें जूते की नोक पे, और जो हमें आके ये कहे मैंने तो कि ये कहा ही हमारी नहीं। दोस्त क्या है, मेरी बात तो सुन लेना। मैंने तो ये कहा ही नहीं। अब्दुल्ला भाई, मेरी बात तो सुन लेना, बात मुकम्मल। ओहो, बात तो मुकम्मल कटहरे में खड़ा कर लिया। मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने ना। जब आपकी नहीं बात बोले होगी, ना, सामने मुंह पे मैंने आपको झूठ बोलने का कितना क्या टाइम फायदा? दिया था अब्दुल्ला भाई, मैंने आपको कितना टाइम दिया था? मैं बोला बात, लेकिन आप झूठ ना बोले, जो मैंने बात कही नहीं वो क्यों कह रहे हैं? झूठ आपने बोले हैं, जितने झूठ बोले हैं, मैं भी कह सकता हूँ ना अब्दुल्ला भाई, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं खामोश रात सुनता रहा ना। अभी इतना छोटी सी बात करूंगा अब्दुल्ला भाई, जो हमें हदूद बनवाए और हमें बताए कि हमारी क्या लिमिट्स हैं, ऐसे बंदों को हम जूते की नोक पे रखते हैं जो हमें हदूद गिनवाए आके, ठीक है? तो बराए मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका। लेकिन ऐसे सब लोगों की बातें, जो कोई भी आके हमें कहे ना कि ताड़ी हदूद की ने, तुसी कौन हो, ऐसे सब लोग हमारे जूतों की नोक पे हैं। शुक्रिया। तो कोई मसला नहीं है, हमने भी तो जूते की नोक पे रख के माफी मंगवाई है ना, और साथ भी दिया है कि आप लोगों की बात ठीक है। यार अब्दुल्ला, अगर आप माफी के लिए कर रहे हो, हाँ। क्यों इतनी पर्सनल अकड़ हुए बातें कर रहे हो? अब्दुल्ला, अगर नहीं, अफजल भाई साहब, जब वो आंकड़ेंगे तो मैं भी जाटूं, मैं भी जाटूं, वो कालू है तो मैं भी सिद्धू। अब्दुल्ला, मैं कह रहा हूँ कि आप मैं उनसे दोबारा लेकर नहीं पैदा खाता, आ जाना तो मैं माफी वो नहीं करूंगा। मंगवा सकते। अब्दुल्ला, मेरी बात सुनो मेरे प्यारे भाई, मंगवाई अगर है कि नहीं दोबारा पैदा हो जाओ ना, माफी नहीं मंगवा मंगवाई है सकते। कि नहीं मंगवाई? मैंने अपने लिए खुद मांगी ना। अच्छा, अगर आपको तो ये अफजल भाई साहब, एक मिनट बात की है वो ठीक बात अफजल की भाई है। साहब, मैं एक और असली बात करने लगा हूँ, एक असली बात करने लगा हूँ। इन्होंने क्या कहा कि मैंने खुद ये माफी मांगी है, यानी इनको पता था कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम यानी पता होने के बाद इन्होंने ये कुफ्र अजीम किया। इसका मतलब है इनका तो निकाह टूट गया था उस वक्त, दोबारा निकाह। अच्छा, निकाह टूट गया, चलो फिर निकाह जाके करवा लो जाके, चलो शाबाश। भाई तुम कह रहे हो ना, हमने खुद माफी मांगी है, हमें पता था हमने गलती की है, हमें पता था ये गलत काम है। अब्दुल्ला भाई, तुम एक जाल पर तुम
यार आपके निकाह ये तोड़ने तो वालों तय को, करने वाले तुम लोग कौन हो? यार टल जाओ प्लीज। चलो आप ये नीचे जी बैठ के फतवे फतवे बात। दो। जज़ाक अल्लाह। हाँ, फतवे दे रहा है जी। तुम्हारे निकाह तोड़ने वालों को और तुम्हारे बड़े मुफ्तियों को जूते की नोक पे रखता हूँ। चलो निकलो जी। कौन भाई और बात करना चाह रहा है? जी अबू हनीफा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए कादियानियों के ख़िलाफ़ अगर सबसे पहला काम और असम्बली के तहत और सबसे बड़ा काम अगर किया है तो वो उलमा ने ही किया है। देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर इनके सबसे बड़े हैं इनके सामने अगर आए हैं वो उलमा ही आए हैं। मुफ्ती महमूद आया तो वो भी मौलवी था, इसी तरह शाह अहमद नूरानी वो भी मौलवी। तो लिहाजा हमें हरगिज़ ऐसा इक़दाम नहीं उठाना चाहिए कि हम उलमा के ख़िलाफ़ ऐसा इक़दाम लें और कादियानियों के जो मौक़िफ़ है उसको मजबूत करें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो हजरात हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ ये लोग मीर साहब ये हरगिज़ ये नहीं कह रहे हैं कि उलमा की इज़्ज़त को घटाएं, बल्कि ये कह रहे हैं कि उनकी इज़्ज़त बढ़नी चाहिए। तो इस तरह की अगर ये उलमा इकराम अगर ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे, मसलन वो अगर गालियाँ देते हैं, तो अगर हम कोई ज़ाती कारोबार शुरू करते हैं इसमें मिलावट वाली चीज़ नहीं देते, तो अगर हम यहाँ पर ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं तो क्यों हम ऐसे लोगों के साथ बैठें जो जिनके बारे में नबी अलैहि ने फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिम फुसूक हो, तो गाली देने वाले को फासिक कहा है। तो हरगिज़ ये जो लोग हैं इनके बारे में एक रवैया जा रहा है कि ये लोग उलमा के खिलाफ, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये ऐसा मौक़िफ़ दे रहे हैं कि इनको अपने साथ ना बिठाएं। और दूसरी जगह ये है कि शाह साहब ने खुद भी मैंने सुना है उनकी बरात कोई लोग आए हैं और उन्होंने मजम्मत भी की है जो लोग गालियाँ देते हैं। तो हमें इस बात से, इस ब्रॉड से यही एक लेना चाहिए कि हम ऐसा मौक़िफ़ हरगिज़ ना दें कि हम कादियानियों का जो मौक़िफ़ है उसको मजबूत करें और उलमा के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबानें दराज करें। जगह जगह अगर हम देखेंगे, अगर कादियानी चाहेंगे कि दीन इस्लाम को कमज़ोर करना चाहेंगे तो सबसे पहले इनके जो मौलवी हैं, इनके उलमा हैं, इनको टारगेट बनाया जाए। तो लिहाजा मेरी यही बात करनी थी। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकमुल्लाह अहसनल जज़ा। छोटे जहन, कम इल्मी के जज्बाती फतवे, 2-2 टके के लोग उठ के बैठ के जी कहने लग जाते हैं जी हम ताड़े निकाह तोड़ देंगे। और जाओ काम करो जाके, सारी उम्र आके दोबारा पैदा हो जाओ ना, तुसी कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना तोड़ सकते। एक मिनट दो आप कर रहे जी। और कोई जाहद भाई आप बात करें। जाहद भाई आप काफी देर से आए हैं। मैंने बात करनी है, मुझे टाइम दे दे, मैं कितनी देर से सुन रहा हूँ भाई। मुझे पीर साहब आप भी साथ हो, मैं भी साथ हूँ। पीर साहब क्या हो गया यार? मैं अपना नाम बदल दो फिर, अपना नाम बदल दो। जाहिद जमील भाई। जाहिद जमील भाई। अगर वो मसरूफ हो गए तो मुझे टाइम दो। उसमें क्या पीर साहब मैं आ गया वापस, मेरा फोन आ गया था। पीर साहब एक मिनट जी, पीर साहब मेरी बात सुने। सब भाई बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, सब भाई खत्म नबूवत पे काम करने वाले हैं। ये किसी को धमकियां लगाना, ये करना, कोई फायदा ही नहीं है इस चीज़ का। और दूसरी मिसाल कि हम किसी मौलाना को, किसी मुफ्ती उनको फिर कॉल आ गई है जी। इंतकालां पिछले लैके बह गई हैं जी। सखी भाई 1 2 3 आपका मौका। और मेरी काले लिया यार। नहीं मसला साहिल भाई देखिए, मैं जो मिसाल देने लगा सुने, सुन ले अभी मेरी बात सुन ले। मैं ये मिसाल देने लगा हूँ कि अगर मेरा बेटा शराब पीता है ना या सिगरेट पीता है, क्या मैं उसको बैठूंगा बेटा मेरे साथ बैठ जा, कोई टेंशन नहीं, तो मैं तेरे को समझा लेता हूँ। उसको सजा दी जाती है, यार बेटा तो ऐसा किया तो मैं तुझे ये करूंगा। इसका हाल तो यही है, इस्लाम यही सिखाता है। अगर कोई गलती हो जाए उसकी थोड़ी बहुत सजा होती है, या थोड़ी नफरत करोगे तो फिर जाके वो सीधा होगा। अगर आप कहेंगे कोई मसला नहीं, सही है उन्होंने मना किया, हम उनके साथ हैं, मगर उनको वार्निंग दे 2-3 दफ़ा, नहीं बाज आते फिर उनका रास्ते अलादा कर दे, बस खत्म। ये तो बंद है ना।
और अब्दुल्ला भाई थोड़ा ठंडे हो जाओ, पानी पिया करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੰਜ। जी आपकी बात हो गई जी। मैंने पता है मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, लेकिन जिस वक्त कोई तजावज करेगा जी जी हाँ करें। एक मिनट मैं आपको बड़ा जो ये फतवा देगा मैं 1 मिनट बड़ा कर दूं आपको। 1 मिनट जी जी करें भाई क्या करें, बड़ा करें। कर देंगे, बार बार बड़ा करेंगे, दूसरों को बात करने नहीं देंगे। आवाज आ रही है अभी मेरी? वो भी मेरे मालिक आवाज आ रही है? साहिल साहब नहीं, जी जी से आप लाइन में जी करें बात। जी अब्दुल्ला आ रही हो। वो फतवा साहिल देने आया साहब है। जो बंदा ये कहेगा ना, ये कहेगा कि उलमा ये फतवा देगा कि फलां आलिम गालीबाजों की पुष्टपनाही कर रहा है, हम उसकी जुबान गुद्दी से खींच के ना तो उसके मुंह में वापस डाल देंगे और उसके इस बात को जूते की नोक पे रखते हैं और गंदे जूते की नोक पे रखते हैं। ठीक है, तो बात करने से पहले 1000 दफा सोच लिया करो। जब तुम्हारा रिकॉर्ड इस तरह का है कि तुम पहले भी गलती कर चुके हो और उस पर माफी मांग चुके हो, तो तुमसे दोबारा भी कोई गलत बात निकल सकती है मुंह से। इसलिए जुबान को, अपनी लोलो को थोड़ा सा संभाल के बात किया करो बंदों के दरमियान, के कल को फिर दोबारा माफी ना मांगनी पड़ जाए। इस वक्त तुम दोनों मीर और साहिल कालू, तुम दोनों ये जायद इसकानी और उम्मे को सपोर्ट कर रहे हो। बेइज्जती यहाँ पर हो रही है। जायद इसकानी साहब मैं आपको नीचे उतार दूंगा। अलग उलमा के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं, तुम अलग उलमा के खिलाफ साहब आए अपने रोड पे, यहाँ कर रहे हो बेइज्जती हो रही है। जो बात गलत है वो गलत है। जब उन्होंने तजावज किया तब आपका पूरा साथ दिया। अब आप तजावज कर रहे हैं तो अब मैं जिन उलमा के खिलाफ आप जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उनका पूरा साथ दूंगा। हम किसी के साथ नहीं, हम हक के साथ है। ओ भाई उलमा तुम्हारे हैं सिर्फ, सारे के सारे ये सब कर लेने दो उसको बात यार, ज्यादा मुसलमान हो उसको आप। कर लेने दो। ठेकेदार लगे हुए हो। मैंने कहा है कि उलमा सिर्फ मेरे हैं, तो और क्या कह रहे हो? यही इंप्रेशन दे रहे हो ना? मैं तो ये नहीं कहा, नहीं बिल्कुल नहीं ये इंप्रेशन दे रहा। ये तुम्हारी दिमागी फतूर का इलाज कराओ, अपने दिमागी फतूर का। हमारे फतवे जूते की नोक पे है ना, तो तुम्हारे फतवे गंदी जूती की नोक पे हैं और तुम्हारी जुबानें गुद्दी से खींच के ना मुंह में वापस डाल देंगे इंशाल्लाह। यार और आगे तुम्हें करके दिखाया है, चाहे किसी गिरोह ने भी किया है। यार कोई नहीं अफजल बड़ाई साहब, हम मानते हैं कि लोग बुरे हैं, माशरे में बुरे लोग हैं, उम्मत में बुरे लोग हैं। ये वो बात उठा के तो उलमा, और जो फिर वो आलिम खुद आके बेचारा इधर कह रहा है कि हमने मना किया, उसको आगे से ये बेशरम इन्होंने हिया की चादर सर से उतार दी। उनको कह रहे हैं कि सबूत दो मुझे, उन्होंने एग्जैक्ट अल्फाज सबूत दो मुझे किए थे। अब उन्होंने बिल्कुल, मुझे याद है कि आप लोग इसको इंताब पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं और ये खत्म नबूवत का काम उस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा जिसमें ये काम का नाम लेना भी जो है वो तकरीबकारी के जिम्मे में आया करेगा। इसी साहिल के अफजल भाई, ये इसी साहिल के मतलब जब मुझे सबूत मांगे गए ना, तो मैंने कहा अगर मुझसे सबूत मांगना है तो मुझे आइंदा से भाई नहीं कहना। तो इसलिए लेकिन इन्होंने शर्म की चादर उतार के सर से उतार दी हुई है अपनी। इनको शर्म है या नहीं है कि ये अपने मफादात के लिए अपनी जो इन्होंने गलती की है उसको छुपाने के लिए उलमा को मिलान करेंगे। इनको बात करने दो यार, क्या मसला? जब मैं ले रहा हूँ तो आपको क्या मसला है? अच्छा चलो ठीक। अच्छा या तो फिर मुझे बता दो। दीन इनके घर का नहीं, दीन इनके घर का नहीं, शरीयत तुम्हारे घर की नहीं। आप ज्यादा तुम शरीयत को तय नहीं करोगे कि हम मुसलमान, हम इजाजत देते हैं, हम इजाजत देते हैं। नहीं, मुझे इसका जवाब देने दे यार, ये ज्यादा शर्म वाला बात है। माँ की उम्र की है तुम्हारी, माँ की उम्र की है जिसको कह रहे थे मैं शादी हम इजाजत देते हैं। अपनी माँ के बारे में भी ऐसे ही कहते हो लोगों को। तुम ज्यादा शर्म की चादर ओढ़ के बैठे हुए हो, लोगों को शर्म का दरस दे रहे हो। ये कहते नहीं रहे उम्मे के बारे में कि तुम्हारी मैं शादी करवाता हूँ अस्कानी के साथ। तुम ज्यादा शर्म वाले हो, बेशर्म इंसान। तुमसे बड़ा, हाँ तो फिर तुम शर्म का दरस दोगे। तुम फतवे दे रहे हो साहिल कालू के ऊपर। जब वो मेरे उलमा को माँ बहनों की गालियां देगी तो मैं कहूंगा जी चले उम्मे, और उसका शोहर नहीं है, उसका शोहर नहीं है। मैंने एक मिनट, ये अजी शर्म की चादर। मीर भाई मुझे जाना है, भाई मुझे जाना है, मुझे छोटी सी बात कर लेना तो यार। अफजल आप ये गालियां उठानी है तो मुझे बता दे, मैं कोई मॉडरेटर ना करूं। मेरा हक ये जी अफजल साहब जी जी एक मिनट, उम्मे बाजी एक मिनट। अच्छा सर साहब बोले आप। अब्दुल्ला भाई, मेरे सोने, मेरे चीते भाई, कभी किसी की गोद में मेरी बात सुनो। यार अब्दुल्ला सुन भी लो ना, इतना टाइम दे दिया आपको, थोड़ा सा सुन लो। अब
عبداللہ بھائی میرے سونے بھائی آپ جیسے نا بڑے آئے بڑی دھمکیاں دی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم زبانیں اڑا کے فلاں کر دیں گے. عبداللہ بھائی میرے پیارے بھائی آپ دوبارہ بھی جنم لے لو نا آپ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے. یہ باتیں کرنا الفاظی کرنا یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہو لیکن کر کچھ نہیں سکتے. اس لیے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہتا ہوں آپ لوگوں کی باتیں جوتے کی نوک پہ اور ہمیشہ جوتے کی نوک پہ رکھی جائیں گی. کبھی کسی وقت بھی آپ کے سامنے یہ نہیں کہا جائے گا کہ او اچھا آپ نے دھمکی دی چلو کوئی نہیں آپ میرے بھائی جو بھی دھمکے گا ایسی کی تیسی جوتے کی نوک پہ. میں نے نہیں اتارا یہ تو آپ میں تو آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں دنیا رزلٹ میں مانگتی 5 منٹ دے رہا ہوں مجھے آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. بات ساحل کالو کو بھی کرنے دو نا یار. مجھے ایک منٹ افضل وراج بھائی مجھے بات کرنے دیں. مجھے آپ کو عبداللہ کوئی اتارنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں سب سے زیادہ ٹائم دے رہا ہوں سب کو پیچھے کر کے میں نے آپ کو اتارنا کیوں؟ آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ جنرل آسم منیر ہے اس کو نیچے اتار دیا بٹا رہا ہے. ہو گئی بات. یہ آپ کی لفاظی جو ہے نا وہ کہانیاں ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے جو دیکھا ہے رزلٹ دیکھے ہم اس پر بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا آپ نے غلطی کی لوگوں نے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور لوگوں نے آپ سے معافی منگوائی. عبداللہ آپ کی بات سب لوگوں نے دیکھا 10 دفعہ اب ریپیٹ ہو گئی ہے. آپ کی بات آ گیا. وی ول موو آن. کہتا لوگوں نے معافی منگائی وہ تو میرے جوتے انشاءاللہ ہم کریں گے. وہ تو میرے جوتے چاٹ رہے انشاءاللہ ہیں. اس بات پر معافی میں انشاءاللہ اس بات پر معافی منگوا کے دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ جو عبداللہ میں نے ایک منٹ روک دیں. میرا بھائی ہے وہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کیوں لڑائی کروا رہے ہیں آپ لوگ؟ میرا بھائی ہے نا وہ مجھے کرنے دیں. عبداللہ میرے پیارے بھائی میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دوبارہ جنم لے کے آ جاؤ نا آپ نہیں کروا سکتے بھائی. آپ نہیں کروا سکتے. دوبارہ جنم لے کے آ جاؤ نا آپ توے پہ رگڑ کے بھی کچھ کہہ دو نا نہیں کروا سکتے عبداللہ. ہاں میں کرنا ہوگا اپنی مرضی سے کروں گا کسی کے کہنے پہ نہیں کروں گا. اور میں ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا جو گالی بازوں کی ٹائم دے دو پلیز. یہ سخی صاحب کو موقع دے جی. یہ بھی بھائی آئے ہو. نہیں مجھے میں نہیں بات کرنا چاہتی وہ کسی اور. اچھا مجھے نا تھوڑا سا ایک آخری سیکنڈ دے دیں عبداللہ. صرف اتنا کہوں گا کہ جو مرضی کر لو کچھ بھی نہیں کروا سکتے. جو کٹہرے میں کھڑے کرنے والے تھے وہ بھی جوتے کی نوک پر. عبداللہ بھائی میرے سونے بھائی آپ بھی جوتے کی نوک پر. اور اب یہ جو چیلنج کر کے گئے ہو نا مرد کے بچے ہو تو اس چیلنج پر قابو رہنا اور رہنا کہ ہاں میں معافی منگواؤں گا. یہ مرد کے بچے کی طرح چیلنج دیا نا مرد کے بچے کی طرح یہ چیلنج پورا کرنا. آپ ساحل صاحب وہ ٹرال کرتا ہے کوئی سیریس بات اس کی ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. ذاتی انا کی باتیں وہ کر رہے ہیں. چلو جس کا ٹائم ہے اس کو دے. مجھے ٹرول کرے گا وہ خود گالیاں دیتا ہے وہ مجھے ٹرول کرے گا. بھائی چھوڑ دیں اسے. ساحل بھائی چھوڑ دیں. وہ بچہ ہے وہ کوئی نہیں امیچور ہے. یار اس کو مائک پہ کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کہ ہم بچے کے آپ کے کھلونا بنے ہوئے ہیں. یار کچھ نہیں بات کرو بس. بنتے ہوا آپ بات کریں پلیز. بنتے ہوا پلیز. اور یہ سخی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. انہوں ہمیں سیریس لے رہے ہو ساحل صاحب جنہوں نے سیریس لے رہے ہو یہ جا رہے ہیں. مجھ سے پہلے یہ سخی 1 2 3 ہے نا ان کو بھی ٹائم دے دے. نہیں بھائی جی آپ بات کریں بس. نہیں میں کیا اچھا چلو ٹھیک ہے. جھوٹوں کے بیچ میں سچ بول بیٹھی وہ نمک کا شہر تھا میں زخم کھول بیٹھی. بس ماڑی اتنا ہے تو سگا بولنے جاؤ میں سننی ہوں. جی سسٹر بولیں آپ پلیز. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. افضل صاحب مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ میرے میسیجز کو بلاک کیا گیا بار بار مجھے ڈراپ کیا گیا. اور میرے ہی موضوع کو جب میں نے سوال رکھا کہ ایک شخص نے کہا اب میں آپ کے توسط سے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی بات ہے تو اس کو سامنے لایا جائے. وہ شاہد ہے وہ آکاش ملک ہے. میں نے اپنے دشمن کو بھی بھائی کہا. میں نے جو میرے ساتھ چلنے والے ان کو بھی بھائی کہا. میں دوسرے کو عزت دی. اب جو شخص یہاں پر گالی کی بات کر رہا ہے عبداللہ نام کا جتنی غلاظت اس شخص میں ہے جتنی غلاظت یہ شخص بولتا ہے. اور اس نے کہا کہ عمر باب نے کتا کہا سب کو. بھونکنے والے کو کیا کہے گی عمر باب؟ اگر نام نہاد مجاہدین جن کو جتنی بڑی گالی دے اتنا بڑا مجاہد ان کو کہا جائے تو ان نام نہاد مجاہدین
दूसरों की ब्रॉड्स पर आकर गलाजत के भरे हुए ढेर वहां पर आकर गंद बोले, माँ बहनों को गंदी मूवियां चलाएं, वहां पर ब्रॉडों को हैक कर ले, और फिर अगर ऐसे लोगों को कहा जाए कि इनसे कुत्ते बेहतर हैं तो क्या गलत है? उम्मे साहबा ये सुन ले, शाहिद का बयान सुन ले जिसके बारे में बात हो रही है। नहीं गल अंकल इकबाल, चलो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ अच्छा, ਅਸੀਂ रिश्ता नहीं लाते। अब्दुल्ला को कोई बंदा म्यूट ना करे, अब्दुल्ला को कोई बंदा साहिल भाई एक मिनट, ये इसको डिफेंड कर रहे हैं, ये शाहिद को सारे डिफेंड कर रहे हैं, ये सुन ले। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਜ਼ਤਮਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। It's enough. मीर साहब ना करें। अच्छा सिस्टर आपको यहाँ पर एक मिनट रुको, अब्दुल्ला को कोई बंदा म्यूट ना करे और ना कोई ब्लॉक करे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसको कोई बंदा म्यूट ना करे, कोई ना कुछ करे। लेकिन अब्दुल्ला आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, आपको ये भी पता है कि मैं आप ही के मुल्क के जहाँ पे आप इस तरह रहते हैं मैं भी वहीं पे रहता हूँ। अगर आप में दमखम है, आप मर्द के बच्चे हो, तो मुझे बताना, मैं आपको अपना एड्रेस भेज दूंगा, सामने आके माफी मंगवाना। जी जो तुम किसको कहते हो ना, मेरे सामने आए मैं चमड़ी उतेर जाऊंगा। अब अब्दुल्ला जी को वापस चल देना, मेरा नाम बदल देंगे। होल्ड कर ले, वो ट्रायल कर रहा है साहिल साहब, और हम सारों को उसने हाईजैक किया हुआ है पिछले घंटे से, और हम स्टूपिड हैं जो उसके हाथों यरगमाल बन रहे हैं। कमाल बात है यार, उसको म्यूट ना करें, उसको फलाना करें, उसको सर पे बिठाएं, ट्रायल को रिमूव करें और उसको ब्लॉक करें। उम्मे सिस्टर आप बोले मैंने आपको रिमूव नहीं किया उम्मे सिस्टर, और ना मैंने मैसेज ब्लॉक किए किसी को, ब्लॉक सिवाय इसके कोई गाली गलौज कर रहा है या कोई ट्रायल कर रहा है या तंग कर रहा है किसी को। जी बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जितने भी रिकॉर्डिंग्स और मेरे मतलब खिलाफ जब भी बात की गई है, मैं यहाँ पर आपके सामने ये बात पेश करती हूँ कि 2.5 साल से जो कुछ मेरे बारे में कहा गया, मेरी फैमिली के बारे में कहा गया, मेरा किसी के साथ तो ना जाती लेन देन है, ना मेरा किसी के साथ ताल्लुक है। हाँ, मैं हर मुसलमान की गैर मुस्लिम की इज्जत ज़रूर करती हूँ, ये मेरा कसूर है और मैं इस गलती को तस्लीम करती हूँ। और मैं ये सोचकर इज्जत करती हूँ कि दूसरे की बेतहाशा इज्जत करो, और वो आपको या तो आपको इज्जत के बदले इज्जत देगा, इज्जत नहीं देगा तो कम से कम सबक ज़रूर देगा। तो मुझे बुरे लोगों से सबक ज़रूर मिला। जहाँ तक उलमा को बुरा कहने की बात है, तो जो उलमा जिनकी मैंने हमेशा तारीफ की है वो तारीफ के काबिल है, और जो उलमा अपने आप को 10 मिनट तक वापस आ रहा हूँ, आप कैरी ऑन करिए। अच्छा, जो